Hello friends, today I am going to teach you the preamble of Indian Constitution. So here is the preamble of Constitution and I hope कि सबने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, देखा होगा या सुना होगा. तो मैं इसको पूरा रीड तो नहीं करूँगा, बट आई विल डिफाइन वन और टू थिंग्स इन दिस स्लाइड. So, first thing is we the people of India. The most important thing is we the people of India. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम पावर जनता के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है. इसलिए उन्होंने कहा था. एंड सेकेंड थिंग इज़ 26 ऑफ नवंबर 1949. ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. और यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर 26 ऑफ नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, इनैक्ट हो गया, तो हम 26 जैन को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं. तो यहाँ पर हम लोग को हिस्ट्री में जाना होगा. तो मैं बताता हूँ. जो है 1929 और डे सेम था, 26 जैन थी. और वहाँ पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू. और वहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और रेजोल्यूशन लिया था कि आज से 26 जैन को ही हमारा जो है रिपब्लिक डे मनेगा. तो अब हम समझते हैं व्हाट इज़ प्रीएम्बल एंड व्हाई इज़ द प्रीएम्बल. So preamble is the first page of the constitution. It is the introduction or preface. There are 86 words in the preamble. We can say preamble is a summary or essence, or we can also say first mirror of the constitution. N.A. Palkhiwala, the eminent jurist and constitutional expert, said that preamble is a identity card of the constitution. It is based on objective resolution drafted by Pandit Jawaharlal Nehru. So I am writing the date of objective resolution, that is 13 December 1946. So this was the date when objective resolution was drafted. Then added 3 words: socialist secular integrity, 42nd Constitutional Amendment Act 1976. तो ये तीनों वर्ड बाद में जोड़े गए. और की वर्ड्स जो हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. सो वन बाय वन हम ये सारे चीज़ों से डील करेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट इज सोवरेन. सोवरेन, it implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. बिल्कुल इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है. देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट एंड फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स. बिल्कुल वेदर इट इज़ इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल, इंडिया जो है बिल्कुल फ्री है अपने डिसीजंस लेने में और उसके ऊपर कोई भी किसी का अभी फोर्स नहीं है. और बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in a favor of foreign state. And next thing is socialist, added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. As I told you earlier, and
second point is India follows democratic socialism, not a communistic socialism. Communistic socialism involves nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private properties. Democratic socialism holds faith in mixed economy, where the uh, democratic socialism and communistic socialism can coexist, and blend of Marxism and Gandhism leaning towards Gandhian socialism. बिल्कुल हम Gandhian socialism की तरफ ज़्यादा जो है लीन करते हैं. However, LPG liberalization, privatization, globalization 1991 diluted the socialist credential of Indian state. कहीं ना कहीं अब हमारे जो सोशलिस्ट फिनोमिना है वो कहीं खोता जा रहा है, और उसका टाइम भी है, तो इसलिए नाउ नेक्स्ट स्लाइड. सेकुलर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. India follows positive secularism, not negative secularism. Now we need to understand what is the positive secularism and what is the negative secularism. So the negative secularism is a concept where the state may neither favor a particular religion nor interfere with religion. Example USA. बिल्कुल as we all know, USA and other Western European countries believes in the concept of separation of church and the state. The positive secularism is a concept where all religion in country have same status and support from state. Example India. बिल्कुल India is following positive secularism. We believe in equality of religion. Mention of Articles 25-28 in the Constitution is a proof that Constitution maker wanted to establish a secular state. बिल्कुल आर्टिकल 25 से 28 जो है बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, भले ही उन्होंने उसका मेंशन ना किया हो. Now the democratic possession of supreme power by the people. As we all know, Abraham Lincoln said, define democracy as a government by the people, to the people, for the people. And democracy is of two types, direct or indirect. Direct democracy, people exercise their supreme power directly by referendum, initiative, recall, plebiscite. Example, Switzerland. So, रिफरेंडम रिफरेंडम में क्या होता है कि अगर कोई लेजिस्लेशन है उसे पास करना है, तो जो जनता होती है वो वोट करती है. अगर वो फेवर में वोट करती है तो लेजिस्लेशन पास हो जाता है, अगर अगेंस्ट में करती है तो लेजिस्लेशन पास नहीं होता. इनिशिएटिव रिलेट करता है रेफरेंडम से. तो अगर कोई बिल है उसको जनता लाना चाहती है तो वो प्रपोज कर सकती है बाय द इनिशिएटिव. रिकॉल. सो रिकॉल में क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिनको हमने चुनकर भेजा है उनको हम वापस बुला सकते हैं अगर दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़. प्लेबेसाइट. तो प्लेबेसाइट में एक्चुअली प्लेबेसाइट जब टेरिटरी का डिस्प्यूट होता है ऐसे समय में प्लेबेसाइट कराया जाता है, और हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं. अभी क्रीमिया वाले मैटर में भी हमने प्लेबेसाइट वर्ड को सुना था. In indirect democracy, representatives elected by the people exercise the supreme power. It is also known as representative democracy. Representative democracy is two kinds, parliamentary and presidential. Indian constitution follows representative parliamentary democracy. बिल्कुल वी आर फॉलोइंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और हम सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडिया जैसा बड़ा कंट्री जिसके पास ह्यूज पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो पाना पॉसिबल नहीं है. और स्विट्ज़रलैंड एक छोटा देश है जहाँ पर रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबेसाइट ये सब आसानी से हो जाते हैं.
Then next point is republic. Democratic polity is a two type, monarchy and republic. Monarchy, head of the state enjoys hereditary position through succession, example Britain. इसमें क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है और बाकी किसी को भी जो है हेड ऑफ स्टेट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है. रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली इन यूएसए और इनडायरेक्टली इन इंडिया फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. बिल्कुल अगर हेड ऑफ स्टेट दैट इज़ प्रेसिडेंट यूएसए में डायरेक्ट प्रेसिडेंट चूज़ होता है और इंडिया में प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चूज़ होता है. जस्टिस, तो जस्टिस कितने टाइप की होती हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशल जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट, color, race, religion, sex, and so on. Economic justice, non-discrimination between the people on the basis of economic factors. Political justice, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. सही बात है, हम सबको ही इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, हम सब वोट दे सकते हैं. इक्वल एक्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल ऑफिस, बिल्कुल हम सारे ही पॉलिटिकल ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, बिल्कुल हमारी सबकी इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में. एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन 1917. जब रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाई इज़ द रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ द रशियन रेवोल्यूशन. तब रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपने आप को हटा लिया था. Liberty. Liberty means the absence of restraint on the activities of individuals and same time providing opportunities for development of individual. हाँ, ये एक तरफ तो जितने भी रिस्ट्रेंट्स हैं वो तो हटा ही रहे हैं इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ से, और साथ में ही अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो ग्रो हों, डेवलप हों. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप देता है, जो कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 to 28 में प्रोवाइडेड है. द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 to 1799. जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखेंगे. Equality, equal status and no discrimination, equal opportunity, reservation and other affirmative action in favor of backward classes, scheduled caste and tribes, women, children and physically challenged. तो इक्वल स्टेटस रहना चाहिए और नो डिस्क्रिमिनेशन भी होना चाहिए. बट अगर कोई हिस्टोरिकली किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसे एफर्मेटिव एक्शंस के द्वारा उसको ऊपर लाने की भी कोशिश करनी चाहिए. फ्रेटर्निटी, द मेन पर्पस ऑफ फ्रेटर्निटी इज़ टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड. और सिंगल सिटीजनशिप ये बेस्ट एग्जांपल है. और इससे क्या होता है कि हम अपना गुजराती, मराठी या पंजाबी नहीं समझते हैं, हम अपने आप को इंडियन समझते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ में प्रोवाइडेड है कि प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. आर्टिकल 17 प्रोवाइड्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेटर्निटी को मेंटेन करने के लिए. एंड फ्रेटर्निटी हैज़ टू इंश्योर टू थिंग्स, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. बिल्कुल डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल तो मेंटेन ही होनी चाहिए, साथ में यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी मेंटेन होना चाहिए. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में वेदर प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट इसको देखेंगे. और टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.